Okay. Yes. Now I'm audible. So, are you all the freshers? Yes, sir. Yes. You know Indian Constitution? What? Partially? Okay. Means up to a certain extent you are having idea about Indian Constitution. Yeah. See, uh, do you know the syllabus of general studies paper 2, especially the portion of Indian polity and constitution concerning written examination vis-a-vis the preliminary examination? Do you have the idea? Yes. How many units are there in general studies paper 2? No, no, you were talking about the components of GS paper 2. I'm talking about the number of units which need to be catered in due course of having a travel across the general studies paper 2. See, GS paper 2 comprises of a total of 20 units. Okay. First 6 units, like unit number 1 to unit number 6, they are related with Indian polity and constitution. So units 1 to 6 are related with Indian polity and constitution. The written examination syllabus is well-defined syllabus, but that is not the case with preliminary examination. If you look into CSP syllabus, I mean the syllabus of civil services preliminary examination, that is not much lucid. Okay, that is very much ambiguous. It solely depends upon the individuals how he or she deciphers the syllabus. Are you getting me properly? Yes. But the written examination syllabus is clear-cut syllabus. For example, if you look into unit number 1, under unit number 1, it is given that Indian Constitution, historical underpinnings, evolution, features, important provisions, amendability, as well as the doctrine of basic structure. Okay, this is actually the unit number 1. So today I would like to uh, throw some light upon a very easy topic of Indian Constitution so that everyone can easily understand. And the topic is related with unit number 1. The name of the topic is amendability of the Constitution. Do you have any idea about amendability of Constitution? Especially amendability of Indian Constitution I'm talking about. 3 types. What are the 3 types of amendability pattern of Indian Constitution? Means one way to amend the Constitution of India is via application of ordinary majority, you are asking. Yes, simple majority. What is the other way out to amend the Constitution of India? Special majority. What is meant by special majority? How many types of special majority are there? 4 types. What are they? Now, where is the 4th one? There are actually 3 kinds of special majority, There are 3 types of special majority. One is mentioned under Article 249.
means the kind of special majority to be employed in the context of the constitutional provision given under Article 249. Second kind of special majority is mentioned across Article 368. Okay, Article 368. And the third one is all about the special majority to be employed for impeaching the President of India from his office. And that is given under Article 61. So there are altogether three kinds of special majority. As far as the amendment to the Constitution is concerned, the special majority under Article 368 is to be employed. Okay. So first of all, let's have a look into the topic on which we are going to hold discussion. Amendment to the Constitution of India. Amendment to the Constitution of India. See, amendment to the Constitution of India is actually meant by amendment to the provisions of Indian Constitution, right? Because amendments are caused across provisions. Yes. So it can be, means the given statement or given caption can be simplified in a manner like amendment to the constitutional provisions. Amendment to the constitutional provisions. Constitutional, I'm writing it in brief. You would be understanding the things. Amendment to the constitutional provisions. Now the question is, what is meant by constitutional provisions? See, there are basically two different types of constitutional provisions. One is called flexible provisions and the other is called the rigid provisions. So constitutional provisions are of two types, flexible and rigid. Can anybody tell me what's the difference between flexible provision and the rigid provision? Yes. A flexible provision is one which can be easily amended. Means the procedure to amend the constitution is very simple, very easy. Okay. So if a given provision can be easily amended, it means that the said provision is a kind of flexible provision. What is meant by rigid provision? It is one which cannot be amended easily. Means the procedure to amend it is very difficult, a kind of complex one. Okay, fine. So, based on such provisions, the recognition of a constitution on the basis of its provisions is made. For example, suppose here is a constitution, and this constitution contains a total of 12 provisions, right? 12 provisions. Let us consider that all the 12 provisions inserted or embedded in this constitution, they are flexible ones. Means this constitution contains all its flexible provisions. It means that the given constitution is totally flexible. The given constitution is totally flexible. Second thing. Let's have an example of another constitution. Suppose, again, the given constitution is comprised of a total of 12 provisions, but all its provisions are now the rigid ones. So it contains the rigid provisions. So don't you think you can say that the said constitution is totally rigid? Totally rigid. Okay. Let us say a third kind of constitution where 8 constitutional provisions are rigid and 4 constitutional provisions are flexible. What does it mean? It means the given constitution contains both the kinds of constitutional provisions, namely rigid and flexible, but the degree of rigidity is greater than that of flexibility. So you can say the said constitution is more rigid in nature and less flexible in nature.
Is it okay? Here, we have already understood that a rigid provision is one which cannot be amended easily, and a flexible provision is one which can be amended easily. Fine. So, in case of constitution number 1, you need to apply the complex procedure, or you need to follow the complex procedure of amendment. Sorry, simple provisions of amendment or easy provisions, because it is totally flexible. In case of constitution number 2, since it contains all its provisions in the form of rigid ones, so it needs to apply, a complex kind of procedure to get it amended. But in case of constitution number 3, since it contains both the varieties of constitutional provisions, means on certain provisions you need to follow complex procedure, while on certain provisions you need to follow simple procedure. Now please come on to Indian Constitution. What's about the status of Indian Constitution concerning its provisions? It is somehow related with Constitution number 3, means it shows the unique blend of rigidity and flexibility both. It has flexible provisions as well as the rigid provisions, means both the kinds of constitutional provisions. But whenever it comes to its amendability, if we simplify the nature of Indian Constitution's provisions, means the constitutional provisions of Indian Constitution, we may transform all these 2 varieties of constitutional provisions into the form of 3 varieties. See how. Here we said that it contains flexible provisions as well as the rigid provisions. Now I am telling you that as far as the rigid provisions of Indian Constitution are concerned, they can be subcategorized into 2 forms. Means there are 2 categories of constitutional provisions under Indian Constitution, one flexible, other rigid. Later, rigid provisions can be subdivided into 2 categories. So you can say some of the rigid provisions may be termed as less rigid, and some of the rigid provisions may be termed as more rigid. Less rigid and more rigid. So this is how we can fetch a total of 3 different varieties of constitutional provisions under Indian Constitution. And because of the availability of 3 distinct varieties of constitutional provisions, it is needed to follow 3 way outs to amend the Constitution of India. So there are altogether 3 way outs to amend the Constitution of India. Indian Constitution is amended via following 3 different norms. One is to amend the flexible provisions, we need to apply simple majority. To amend the less rigid provisions, we need to apply the special majority given under Article 368. And to amend the more rigid provisions, in one hand, it is needed to apply the special majority under Article 368, and at the same time, the ratification of not less than 50% of Indian states is also needed. So this is how there are 3 way outs to amend the provisions of Indian Constitution. So look. So Indian Constitution. Generally, it is said that Indian Constitution contains a unique blend of flexible provisions as well as the rigid provisions. Flexible and rigid. But we are going to assume that whatever the rigid provisions are there, they should be subcategorized into less rigid and more rigid. Now the question is, what is meant by more rigid provisions? Look, all the constitutional provisions which directly take part in division of power between center and states, they are called as the more rigid provisions. So the constitutional provisions related with the concept of division of power that is lying between center and state, they are categorized under more rigid provisions.
And apart from those rigid provisions, means the provisions taking part in division of power, the remaining ones are referred to as less rigid. Okay, but for amending the rigid provisions, it is needed to apply the constituent legislative jurisdiction. And for amending the flexible provisions, it is needed to apply the ordinary legislative jurisdiction. Now the question is, what is meant by ordinary legislative jurisdiction? What is meant by constituent legislative jurisdiction? See, the principal functions related with amendment of Indian Constitution is to be carried out on the floor of the Parliament of India. It does not mean that the Parliament of India has, exclusive jurisdiction over amending the Constitution. State legislatures are also taking part in amendment to the Constitution, not in all the cases, but in respect of, while it is to be amended, a kind of more rigid provisions, state legislatures are also taken into consideration. So you cannot say that it is the Parliament of India only which is there to amend the Constitution. No, but the larger job or the larger responsibility related to amendment of the Constitution is carried out in Parliament only. Okay, so the Supreme Court of India in Sankri Prasad versus Union of India case 1951, for the first time had opined that the Parliament of India has two sets of legislative jurisdictions. One is called the ordinary legislative jurisdiction and the other is called the constituent legislative jurisdiction. Whatever the Parliament of India commits or performs within the ambit of its ordinary legislative jurisdiction, that is called as the law-making authority of the Parliament of India. Okay, the law-making authority, the law-making jurisdiction. And whatever the Parliament of India pursues, whatever the Parliament of India performs or commits within the ambit of its constituent legislative jurisdiction, that is called as constitutional amendment under Article 368. Constitutional amendment under Article 368. So here is the usage of two technical terms. One, ordinary legislative jurisdiction, and the other is constituent legislative jurisdiction. Ordinary legislative jurisdiction means the result of ordinary legislative jurisdiction is law, and the result of constituent legislative jurisdiction is constitutional amendment. But remember, that amendment would be stated as the amendment under Article 368. So now the question is, whether the amendment is happened under Indian Constitution within the ambit of Article 368 only, or is there something else? Yes, of course, something else is there. For example, to amend the flexible provision, the Parliament can follow its ordinary legislative jurisdiction. Means the Parliament, by law, can amend the Constitution. But the point is, only those provisions of the Constitution can be amended, which are basically the flexible provisions. Are you getting my point? सब लोग समझ रहे हैं ना? हाँ, तभी मैं समझा ना, इसीलिए पूछा. कोई बात नहीं. हाँ. नहीं, मैंने बड़ा आसान टॉपिक चुना है ना? ये अंग्रेजी मुश्किल बना दे रही है. फिर से सुनो सारी बातें. मैं आपको पढ़ा रहा था. मैं आपको पढ़ा रहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो ये ऐसे कर रहे हैं कि आप थोड़ा जान में जाना है. नहीं, कोई नहीं, आप जैसे हफ्ते 10 दिन की क्लासेस करेंगे ना, आप सब समझने लगेंगे, है ना? क्योंकि फाइनली यू हैव टू राइट द एग्जामिनेशन इन इंग्लिश मीडियम. कि हिंदी मीडियम वाले भी कोई है इसमें, है ना? तो क्यों प्रतिष्ठा में प्राण गंवा रहे थे? पहले बोले होते. हमने मौका ही नहीं दिया. हाँ, ओहो, तो मतलब गलती मेरे साइड से हुई है. कोई बात नहीं, मैं इसको रेक्टिफाई कर दूंगा अभी. मैं आपको ये बता रहा था. अच्छा, मैं भूल ना जाऊं, पहले बता दे रहा हूं, 10 मार्च से रेगुलर बैचेज हमारे शुरू हो रहे हैं, ऑफलाइन बैचेस. पहले ही अगर भूल भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको याद रहेगा. तो आप यू कैन एनरोल योरसेल्फ, आप एनरोल करा सकते हैं.
मैं बता रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को हम क्या बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंडमेंट की बात होती है तो वास्तव में उसके प्रोविजंस में अमेंडमेंट लाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन रूपी किताब को उठाएंगे और उसके किनारे छटनी कर देंगे, संशोधित कर दिया, काट छाट करके बदल दिया, ऐसा नहीं। उसके प्रोविजंस में अमेंडमेंट होते हैं, है ना। और प्रोविजंस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन? फ्लेक्सिबल और रिजिड। हिंदी में फ्लेक्सिबल को सुनम्य प्रावधान कहते हैं और रिजिड को अनम्य प्रावधान। हाँ, और चलती फिरती भाषा में लचीला और कठोर प्रावधान। हाँ, बट लिखने की शैली में इसका इस्तेमाल आप लचीला और कठोर नहीं प्रयोग करेंगे। आप क्या प्रयोग करेंगे? सुनम्य और अनम्य। खैर, आप फ्लेक्सिबल रिजिड समझते हैं। फ्लेक्सिबल प्रोविजन वो होता है जिसे बड़ी आसानी से हम बदल सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के करेस्पॉन्डिंग कोई भी बदलाव जो होता है ना, वो संशोधन कहलाता है। अब बदलाव में अगर कॉमा या फुल स्टॉप को लेकर भी कोई बदलाव हो गया ना, तो उसे भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। मालूम है ना आपको? हाँ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से कुछ हटा देना, कुछ जोड़ देना, या जो उपलब्ध है उसी में बदलाव ला देना, ये क्या कहलाता है? अमेंडमेंट कहलाता है। ठीक है, तो देखिए अब चूंकि अमेंडमेंट प्रोविजंस के करेस्पॉन्डिंग ही होता है, अब खाली पेज पे तो अमेंडमेंट करेंगे नहीं, कुछ लिखेंगे तो होगा। खैर, तो कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह के प्रोविजंस, रिजिड और फ्लेक्सिबल। रिजिड प्रोविजंस में आसानी से संशोधन नहीं होता, मतलब संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है, लेकिन अमेंडमेंट की प्रक्रिया जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। अब चूंकि मैं इसलिए ये टॉपिक आपके सामने रखा था कि आप ये समझ पाए, अक्सर आप कंफ्यूजन के शिकार रहते हैं कि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाते हैं तो किसी किताब में लिखा होता है 2 प्रकार से अमेंडमेंट, किसी में लिखा होता है 3 प्रकार से अमेंडमेंट। अभी किसी भाई साहब ने कहा 4 प्रकार से, जो गलत कहा। 4 प्रकार से नहीं होता, 3 ही प्रकार से होता है। और आपको 3 प्रकार भी नहीं बोलना चाहिए, बेसिकली 2 प्रकार से अमेंडमेंट होता है। फ्लेक्सिबल प्रोविजंस को ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव जुरिस्डिक्शन, साधारण विधायी शक्ति के आधार पर संसद कर देती है, और रिजिड प्रोविजंस को संवैधानिक विधायी शक्ति के हवाले से संशोधित किया जाता है। और जब संवैधानिक विधायी शक्ति की बात होती है तो हम अनुच्छेद 368 का सहारा लेते हैं, आर्टिकल 368। ठीक, तो रिजिड प्रोविजंस में हम आर्टिकल 368 का सहारा लेंगे और फ्लेक्सिबल प्रोविजंस में ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव जुरिस्डिक्शन मींस लॉ का सहारा लेंगे, लॉ का। ठीक है, मेन मुद्दा है रिजिड प्रोविजंस को समझना, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजिड प्रोविजंस है ना, इनकी 2 वेराइटीज है। आपको बताऊं, एक वे सारे प्रोविजंस जो सेंटर और स्टेट के बीच शक्तियों के विभाजन में भाग लेते हैं, डिवीजन ऑफ पावर में। जैसे मान लीजिए केंद्र और राज्यों के पल्ले या हिस्से जो विधायी शक्तियां हैं, अगर उनके संदर्भ में कोई संशोधन लाएंगे तो वो बड़ा जटिल प्रक्रिया होगी। हाँ, अगर प्रशासनिक प्रशासनिक शक्तियों के मद्देनजर कोई बदलाव लाएंगे तो भी बड़ी जटिल प्रक्रिया होगी। लेकिन वही मान लीजिए फंडामेंटल राइट में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, प्रियम्बल में लाना चाहते हैं, डीपीएसपीज में लाना चाहते हैं, ये हैं सारे रिजिड, लेकिन ये सेंटर स्टेट डिवीजन ऑफ पावर में भाग नहीं लेते। तो इसलिए आप कहेंगे कि सेंटर स्टेट डिवीजन ऑफ पावर में भाग लेने वाले प्रावधानों की तुलना में ये थोड़े कम रिजिड हैं। और ये रिजिड क्यों है? बिकॉज दे शो द फिलोसफिकल कंटेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनके माध्यम से भारतीय संविधान का दर्शन परिलक्षित होता है, इसलिए ये रिजिड प्रोविजंस बनाए गए हैं ताकि आसानी से इनमें छेड़छाड़ न किया जा सके। आपको बताऊं, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों तरह के प्रावधानों का चयन किया जा रहा था या निर्धारण किया जा रहा था कि हम अपने यहां दोनों तरह के प्रावधानों को रखेंगे, तो उस समय पंडित नेहरू ने यह लॉजिक दिया था कि फ्लेक्सिबल प्रोविजंस और रिजिड प्रोविजंस दोनों हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस वजह से जोड़ रहे हैं कि फ्लेक्सिबल प्रोविजन जहां एक तरफ हमारी सरकारों को गतिशील बनाए रखने में मददगार साबित होगा, वही रिजिड प्रोविजंस सरकारों को संविधान में मनमाने बदलाव करने से रोकेगा। मीन्स the governments of the days cannot carry out untoward amendment across the constitutional provisions. Thereby, they cannot move on the path of being totalitarian. They cannot follow dictatorship. They will not snatch the individual's rights away from them. तो कहने का मतलब कि देश में कोई भी सरकार नागरिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकेगी, देश में कोई भी सरकार निरंकुश नहीं हो पाएगी, इसलिए रिजिड प्रोविजंस होने चाहिए। प्लस हम एक संघीय ढांचे के रूप में खुद को विकसित करने जा रहे थे। मतलब मैं संविधान सभा के मंच के हवाले से बोल रहा हूं कि संविधान सभा के लोगों ने ये प्लान किया होगा ना कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं।
भारत को एक संघीय ढांचा के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो यहाँ डिवीजन ऑफ पावर से संबंधित जो प्रोविजंस हैं उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, उसे हमें कंसोलिडेट करके रखना है। तो इसलिए डिवीजन ऑफ पावर से रिलेटेड प्रोविजंस को और कठोर बना दिया गया और बोला गया कि इसमें अगर संशोधन करना होगा तो संसद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगी, लेकिन साथ साथ उसे राज्यों को भी विश्वास में लेना होगा। इसलिए इनके करेस्पॉन्डिंग ये प्रावधान कर दिया गया कि कम से कम आधे राज्यों की सहमति चाहिए, कम से कम आधे राज्यों की सहमति चाहिए। तो कभी भी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से संबंधित किसी प्रोविजन को जब अमेंड किया जाता है तो वहां आप देखेंगे पार्लियामेंट में संविधान संशोधन विधेयक पास किया जाएगा और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास होने के बाद उसे सीधे महामहिम के कार्यालय में नहीं भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास, बल्कि स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास भेजा जाता है और सारे स्टेट लेजिस्लेचर्स अपने यहाँ सिंपल मेजोरिटी से उसे रेटिफाई करेंगे मतलब अपनी सहमति दर्शाएंगे। और अगर भारतीय संघ की कुल इकाइयों में से आधी इकाइयों ने अपनी सहमति दे दी तो ये मान लिया जाएगा कि राज्यों ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब उस विधेयक को राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाएगा और फिर उनका हस्ताक्षर मिलते ही संविधान संशोधन विधेयक संविधान संशोधन अधिनियम में तब्दील हो जाएगा। और जरा सोचिए, वैसे रिजिड प्रोविजंस जिनका संबंध सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से नहीं है, जैसे मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स के किसी प्रोविजन में संशोधन करना है, जैसे अभी आपने देखा हाँ किसमें करेंसी, हाँ अरे भाई, तो करेंसी से संबंधित मुद्दा जो है ये आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन लग रहा है? शासनादेश होता है, वो गवर्निंग ऑर्डर होता है। आप शासनादेश को संवैधानिक प्रावधान नहीं मानेंगे ना? हाँ, शासनादेश संवैधानिक प्रावधानों के कंसोनेंट्स में होने चाहिए, उसके अतिरेक में या विरोध में नहीं होना चाहिए, है ना? तो उसको लेकर कोई संशोधन का प्रावधान नहीं है या सहमति का। समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए कहा जाता है कि इंडियन जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसकी सेंट्रलाइजिंग टिल्टिंग अधिक है, इट इज हेविली टिल्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो दोनों तरह के प्रोविजंस की वैरायटीज है, फ्लेक्सिबल और रिजिड, इनमें अधिक संख्या में फ्लेक्सिबल प्रोविजंस है कि रिजिड प्रोविजंस है, तो आपका जवाब क्या होगा? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल है। जब आप सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो ज्यादातर शक्तियां आप केंद्र के पास पाएंगे, राज्यों के पास कम शक्तियां। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबल प्रोविजंस की संख्या अधिक है और फ्लेक्सिबल प्रोविजंस की अपनी एक खासियत होती है, इनके माध्यम से सरकारों को बदलती परिस्थितियों के अनुसार शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में तब्दीलियां लाने में आसानी होती है। रिजिड प्रोविजंस में आसानी से संशोधन नहीं हो सकता ना, लेकिन फ्लेक्सिबल में हो सकता है। इसलिए बदलते समय के साथ सरकारें आसानी से संविधान में बदलाव करा ले जाती है, क्योंकि सरकार उसी पार्टी की होती है जिस पार्टी की संसद में आमतौर पे बहुमत होती है। और फ्लेक्सिबल प्रोविजंस पे अमेंडमेंट कैसे होगा? सिंपल मेजोरिटी। Simple majority means a majority of more than 50% of the total number of members present and taking part in voting। यानी सदन में उपस्थित तथा मतदान कर रहे सदस्यों की कुल संख्या की आधे से अधिक की बहुमत। समझ रहे मेरी बात? और सदन की कार्यवाही चलाने के लिए कितने सदस्य चाहिए? 1/10 मेंबर कम से कम। तो जरा सोचिए, अब हम कह रहे हैं कि लोकसभा में अगर 100 सदस्य ही मौजूद हैं तो 100 का आधे से अधिक कितना होगा? 51 लोगों की सहमति से काम हो जाएगा। तो बड़ा आसान है ना ये। रिजिड प्रोविजन में ये बात बनेगी नहीं। रिजिड प्रोविजन में संशोधन करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव जुरिस्डिक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव जुरिस्डिक्शन क्या है? अनुच्छेद 368 में कही गई बातों का अनुसरण करते हुए संविधान में संशोधन लाना। अब अनुच्छेद 368 में कौन सी बात कही गई है? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की संपूर्ण प्रक्रिया बयां की गई है। तो उसमें बोला गया है कि टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इनटू द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ईदर इनटू द लोकसभा और इनटू द राज्यसभा। यानी संविधान संशोधन विधेयक तैयार किया जाएगा। वह विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। माना कि उसे आपने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया तो लोकसभा में वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ही वर्णित
विशेष बहुमत से पारित होगा। और देखिए अनुच्छेद 368 की जो विशेष बहुमत होती है, नियमित क्लासेस में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, बट संक्षेप में आपको बता दे रहा हूं। सदन में मौजूद व मतदान में भाग ले रहे सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम 2/3। और ध्यान रहे, ये जो 2/3 का आंकड़ा होगा वो सदन की टोटल स्ट्रेंथ के आधे से कम नहीं होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं सदन की टोटल स्ट्रेंथ के आधे से अधिक होना चाहिए। सदन की टोटल स्ट्रेंथ के आधे से अधिक की बहुमत को बेसिकली एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं, पूर्ण बहुमत। तो पहले ही आप सदन की पूर्ण बहुमत निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज राज्यसभा में इसे पारित किया जाना है, तो राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 245। इसका आधे से अधिक कितना होगा? 123 होगा ना? 123, ठीक, 123। ये बेसिकली सदन की बहुमत इसको बोला जाता है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इकलौते स्वरूप में इन हाउस कभी इस्तेमाल नहीं होती, समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, लेकिन दूसरी मेजॉरिटी को फाइंड आउट करने में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे 368 वाली विशेष बहुमत को जब पता लगाएंगे आप, तो वहां इसका सहारा लेंगे। तो मैंने क्या कहा कि 368 वाली विशेष बहुमत के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सदन में कितने लोग मौजूद हैं और मतदान में भाग ले रहे हैं। जितने लोग मौजूद हैं और मतदान में भाग ले रहे हैं उनकी कुल संख्या का 2/3 आंकड़ा निकाल लेंगे। और मान लीजिए वो 2/3 आंकड़ा 121 का है, तो हम मैच करेंगे कि ये जो आंकड़ा है ये सदन की कुल बहुमत के बराबर या उससे अधिक है या कम है। अगर कम होगा तो नहीं अलाउ करेंगे। तो सदन की जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है कितनी है? 123, और ये 121 है। इसका मतलब कि 368 वाली विशेष बहुमत फुलफिल नहीं हुई। और अगर मान लीजिए सदन में मौजूद तथा मतदान कर रहे सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 बहुमत, अगर सपोज 126 निकल के आ गया, तो हम 126 को किससे कंपेयर करेंगे? सदन की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब टोटल स्ट्रेंथ का आधे से अधिक। उसमें ये नहीं देखेंगे कि कितनी वैकेंसी है, नहीं है, वगैरह वगैरह। हमें मालूम होता है कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। तो 245 है, तो उसका आधे से अधिक कितना हो जाएगा? 123। और हमने देखा कि 2/3 बहुमत 126 है, जो 123 से अधिक है। इसका मतलब कि 368 वाली विशेष बहुमत फुलफिल हो गई। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ। अब यही जब 249 के तहत इसे निकालते हैं ना हम, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से कंपेयर नहीं करते। जितने मौजूद हैं और मतदान में भाग ले रहे हैं उनका 2/3 निकाल लेंगे। 249 वाली 2/3 बहुमत हो गई। लेकिन 368 वाली 2/3 बहुमत उसकी तुलना में टफ है ना? हाँ, ठीक है। तो इसी बहुमत से संसद के दोनों सदनों में बारी बारी से संविधान संशोधन विधेयक पास किया जाएगा। हाँ, टोटल स्ट्रेंथ का, अगर मैं समझ गया आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने लेजिस्लेचर्स हैं, हो सकता है कार्यवाही के दिन उसमें से कुछ लोग अब्सेंट हो गए या कुछ प्रेजेंट भी है तो भी मतदान में भाग नहीं ले रहे हैं, मींस दे हैव अब्सटेन देमसेल्व्स फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन वोटिंग। उससे भी मतलब नहीं है। 2/3 निकालने में हम जरूर कंसीडर करेंगे उनको। भाई 2/3 में तो सीधी बात है ना कि जितने प्रेजेंट हैं और मतदान में भाग ले रहे हैं उनका 2/3। अब जो अब्सटेनी है वो तो डिडक्ट हो ही गया। जितने प्रेजेंट हैं एंड टेकिंग पार्ट इन वोटिंग, उनका हम 2/3 निकालेंगे। क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं। आपको डाउट किसमें था? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में। हाँ हाँ, नहीं तो उनको कंसीडर नहीं करेंगे 2/3 फाइंड आउट करने में। 2/3 फाइंड आउट करने में उनको हम नहीं जोड़ेंगे। जो प्रेजेंट एंड वोटिंग होगा, सीधी सी बात है, जो मतदान करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। प्रेजेंट एंड वोटिंग की वजह से आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, आपको ये लग रहा होगा कि क्यों नहीं बोल दे रहे हैं सीधे सीधे कि दोज हु आर टेकिंग पार्ट इन वोटिंग, है ना? बट सब्जेक्ट की अपनी लिंग्विस्टिक कंटेक्स्ट होते हैं। इसलिए आपको भी सलाह देता हूं कि जब इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करें तो आप क्या लिखें? प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जो प्रेजेंट भी है और वोटिंग में भाग ले रहा है। मैंने बोला ना, अगर आप प्रेजेंट हैं और वोटिंग में भाग नहीं ले रहे हैं, इट मींस you are trying to abstain yourself from taking part in voting, so you should not be taken into consideration while calculating the vote। समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन जब टोटल स्ट्रेंथ की बात आएगी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात आएगी, तो उसमें तो सीधे सीधे हम टोटल स्ट्रेंथ को काउंट करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि वैकेंसी कितनी है, अब्सटेनी कितने हैं, बाइकआउट कितने कर रहे हैं। नो, क्लियर है? हाँ, तो थोड़ी मुश्किल प्रकार की बहुमत हो जाती है ये। वही जब 61 के अंदर आप स्पेशल मेजॉरिटी की बात करते हैं तो वहां देखेंगे
टोटल स्ट्रेंथ का ही 2/3 निकाल लिया जाता है। अब जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसके लिए चिंता की विषय है कि भाई जो प्रेसिडेंट को इम्पीच करना चाह रहे हो पूरी तैयारी के साथ आए कि जादुई आंकड़ा छू सके, टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 कर सके, नहीं तो इम्पीच नहीं होंगे। तो सबसे मुश्किल प्रकार की जो बहुमत है हमारे यहाँ वो है आर्टिकल 61 के कंटेक्स्ट में स्पेशल मेजोरिटी, जो केवल व केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ध्यान रखेंगे हिंदुस्तान में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में इम्पीचमेंट केवल व केवल प्रेसिडेंट का होता है, प्रेसिडेंट के अलावा कोई इम्पीच नहीं होता। इसके पीछे भी लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आप देखेंगे ना फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, तो प्रेसिडेंट की जो फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन होती है, शपथ का प्रकार, उसमें प्रेसिडेंट संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। इसलिए आप देखे होंगे प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की जो ग्राउंड रखी गई है वो क्या है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अदर डिग्निटरीज के कंटेक्स्ट में ये शपथ का कंडीशन नहीं होता कि यू हैव टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। नो, you should be abided by the norms of the constitution, spirit of the constitution, but आपको प्रोटेक्ट करने की शपथ नहीं लेनी है, प्रेसिडेंट को संविधान की रक्षा की शपथ लेनी होती है। इसीलिए इनको पद से हटाने का जो तरीका है अन्यों की तुलना में अलग रखा गया है और उसे इम्पीचमेंट नाम दिया गया है। ये मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं। इम्पीचमेंट की परिभाषा कंट्री बाई कंट्री बदल सकती है। जैसे जब आप अमेरिका में जाएंगे तो वहां पर तो ब्यूरोक्रेट्स को भी इम्पीचमेंट के माध्यम से हटाया जाता है। जो नौकरशाह होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, उन्हें भी पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट लगाया जाता है। लेकिन भारत में इम्पीचमेंट केवल व केवल प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि जो लेस रिजिड प्रोविजंस होंगे, लेस रिजिड प्रोविजंस, इनमें अमेंडमेंट पार्लियामेंट के अंदर ही हो जाएगा। कहने का मतलब कि राज्यों के पास इन्हें नहीं भेजा जाएगा, बस पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में सेपरेटली 2/3 मेजोरिटी से इन्हें पास किया जाएगा। आपको मैंने बताया कि किस तरह की 2/3 मेजोरिटी अप्लाई की जाती है। ठीक है, दोनों हाउस पास कर देंगे तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति पे कंडीशन है 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के माध्यम से ये कंडीशन लगा दिया गया कि अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया तो आपको अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी। एक और बात, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक हाउस में पास हो गया, दूसरे हाउस में पास नहीं हो पाया, तो इट शैल बी डिक्लेयर्ड एज डेड ऑल टुगेदर, वहीं पर वो समाप्त हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के करस्पॉन्डिंग डेडलॉक्स क्रिएट नहीं किए जा सकते हैं, गतिरोध उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो लेस रिजिड प्रोविजन में तो ये फॉलो आपने कर लिया। अगर मोर रिजिड प्रोविजन मींस द प्रोविजंस व्हिच आर रिलेटेड विद डिवीजन ऑफ पावर, अगर उनका मामला हो तो क्या होगा? सदन के दोनों हाउसेस में उन्हें पास किया जाएगा। पास करने के बाद डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जाएगा, कहां भेजा जाएगा? स्टेट्स के पास। और जब 50% स्टेट्स की सहमति मिल जाएगी तो कहां भेजा जाएगा? हाँ, जैसा कि आपने कहा साधारण बहुमत के लिए अगर कोई संशोधन हुआ है तो वो दोनों सदन से पास होने के बाद राष्ट्रपति पास नहीं, साधारण नहीं, रिजिड प्रोविजन की मैं बात कर रहा था कि रिजिड प्रोविजन को अगर अमेंड करना हो तो हमें यह प्रिकॉशन बरतना होगा कि किस तरह का रिजिड प्रोविजन। क्या ऐसा रिजिड प्रोविजन है जो सेंटर स्टेट के डिवीजन ऑफ पावर में भाग लेता है? अगर वैसा है तो हाईली रिजिड है, और जो सेंटर स्टेट डिवीजन ऑफ पावर से संबंधित नहीं है उसे हम मान लेंगे कि अपेक्षाकृत ये लेस रिजिड है। तो जो सेंटर स्टेट डिवीजन ऑफ पावर से संबंधित नहीं होगा उसमें अमेंडमेंट के दौरान राज्यों की कोई भूमिका नहीं होगी। राज्यों की भूमिका केवल CSR से संबंधित प्रोविजन से होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब भी राष्ट्रपति के पास जाएगा 1971 ऑनवर्ड्स ये प्रावधान कर दिया गया स्वयं पार्लियामेंट के द्वारा संविधान में संशोधन करके कि राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी पड़ेगी। पहली बात ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे चूंकि सहमति देनी ही पड़ेगी तो पॉकेट वीटो के इस्तेमाल का कोई सवाल ही नहीं उठता। पॉकेट वीटो का मतलब ये होता है टू अलाउ द बिल टू लाई ऑन योर टेबल फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, मींस टू टू बिकम इनडिसिसिव ओवर अ पार्टिकुलर बिल। इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में प्रेसिडेंट ये नहीं बोलेगा कि हम इसे सहमति दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो पेंडिंग कर देगा। समझ रहे हैं? तो आमतौर पे हमारे यहाँ जो पॉकेट वीटो इस्तेमाल होता है वो ऑर्डिनरी बिल्स के कंटेक्स्ट में होता है और अदर फाइनेंशियल बिल्स,
फाइनेंशियल बिल्स दो तरह के होते हैं, मनी बिल एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स। अदर फाइनेंशियल बिल्स की कैटेगरी में दो बिल आते हैं, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 एंड फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2। तो ध्यान रखना, मनी बिल के कंटेक्स्ट में भी वीटो नहीं लगा सकते। तो वीटो केवल कहां लगाएंगे? ये ऑर्डिनरी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स। एनीथिंग एल्स? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर इन लोगों को मतलब उनकी डेजिग्नेशन से रिमूव करना हो तो पार्लियामेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकती? हाँ ना, कर सकती है ना, पार्लियामेंट में ही सारी प्रक्रिया होती है और उनको हटाने के लिए 368 वाली विशेष बहुमत का इस्तेमाल किया जाता है। वो भी तो इम्पीच करेगा। नहीं, मैंने बताया कि इम्पीचमेंट में जिस मेजोरिटी का आप इस्तेमाल करते हैं वो आर्टिकल 61 के अंदर उसे मेंशन किया गया है, जो टोटल स्ट्रेंथ की 2/3 होगी। और जब 368 आप अप्लाई करते हैं तो टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 नहीं, उपलब्ध और मतदान कर रहे का 2/3, प्रोवाइडेड कि वो 2/3 सदन की एब्सोल्यूट मेजोरिटी से कम नहीं होना चाहिए। जो संविधान संशोधन में इस्तेमाल करते हो ना बहुमत, वही बहुमत इस्तेमाल होती है जजेस को रिमूव करने में। नहीं यार, वो न्यूज़पेपर वाले गलत टर्म इस्तेमाल कर देते हैं, इम्पीचमेंट, वो रॉन्ग है, वो टेक्निकली रॉन्ग है जी। इम्पीचमेंट शब्द का इस्तेमाल केवल आप प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में करेंगे। समझ रहे मेरी बात? हाँ, ये किसने कह दिया? मैंने बता दिया कि जब बिल गया पास होकर तो 1971 ऑनवर्ड्स ये प्रावधान कर दिया गया कि यू हैव टू गिव योर असेंट, तो फिर सस्पेंसिव वीटो का सवाल ही नहीं उठता। अरे भाई, कंसिडरेशन के लिए भेजना मतलब टू अप्लाई द सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो नहीं लगा सकते। फिर ध्यान दो, पॉकेट वीटो और सस्पेंसिव वीटो व्यवहार में इन प्रैक्टिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केवल दो तरह के बिल्स पे लगा सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स। एनीथिंग एल्स? हाँ, प्लीज स्पीक लाउडली। पक्ष विपक्ष, हाँ भाई, तो सीधी सी बात है, जब वोटिंग होती है तो पक्ष विपक्ष दोनों का ही होता है। तो मेरा कहने का मतलब कि अमेंडमेंट के पक्ष में कितने लोगों ने वोट किया, जितने लोगों ने वोट किया उनके आंकड़े को रखा जाएगा और फिर कंपेयर किया जाएगा कि वह आंकड़ा सदन की बहुमत से मैच कर रहा है कि नहीं। सदन की बहुमत सामान्य भाषा में सदन की पूर्ण बहुमत को बोला जाता है और सदन की पूर्ण बहुमत का मतलब होता है टोटल स्ट्रेंथ का आधे से अधिक। तो देखा जाएगा कि उपस्थित व मतदान कर रहे सदस्यों का जो 2/3 आंकड़ा है, क्या सदन की पूर्ण बहुमत के बराबर या उससे अधिक है? अगर है तो ठीक है, और नहीं तो बिल्कुल। एनीथिंग एल्स? बेसिक स्ट्रक्चर देखो जी, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला केस के माध्यम से दिया। ये बेसिकली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन दोनों के बीच राइट सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन से पोस्ट 1950s से ही ये एक तरह से कह सकते हैं रस्साकसी दोनों में चल रहा था, लेजिस्लेटिव वर्सेस जुडिशियरी, पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। कई ऐसे अवसर देखे गए जहां पार्लियामेंट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश किया, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पार्लियामेंट ने संविधान में संशोधन करके बदल दिया। तो कई दफा ऐसा महसूस होता है, हालांकि इस तरह के टर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट के दो ऑर्गन्स के बीच में सुप्रीमेसी की लड़ाई चल रही हो। ये लड़ाई अंत होती है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के साथ, और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के साथ भी पार्लियामेंट को चूंकि आदत नहीं थी सुप्रीम कोर्ट की सुनने की या सुप्रीम कोर्ट से हार मानने की, तो आगे भी यह प्रक्रिया जारी रही। लेकिन 1980 में जो मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो वहां से लगभग ये तय हो गया कि अब पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट को नजर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुनने वाला नहीं है। अभी देखेंगे इस साल के यूपीएससी सीएससी मेंस में जनरल स्टडीज पेपर 2 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से एक क्वेश्चन आया था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सिंपल मतलब होता है संविधान के मूल्यों के प्रति हमारी कटिबद्धता, द कमिटमेंट टुवर्ड्स द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हम वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं
तो लिबरल डेमोक्रेसी वाले देशों में कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज का मतलब होता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज से। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का दायरा बड़ा व्यापक है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज में हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हम जस्टिस की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। पार्लियामेंट अपने एक्शन से अगर इनमें से किसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट मुस्तैद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की यह जिम्मेदारी है कि लोगों को हम कॉन्स्टिट्यूशनली मोरल बनाए रखें। और जब कॉन्स्टिट्यूशनली मोरल बनाने की बात आएगी तो जाहिर सी बात है, आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान के सभी लोग अगर एक साथ किसी न किसी रूप में बैठते हैं तो लोकसभा में बैठते हैं? इट इज द मिनिएचर नेशन इन इंडियन पार्लियामेंट। और सारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव वगैरह किसके माध्यम से होता है? भाई पार्लियामेंट के माध्यम से ही ज्यादातर बदलाव होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से। तो सुप्रीम कोर्ट कई अवसर पर देखा कि पार्लियामेंट संविधान में अनटोवर्ड अमेंडमेंट्स लाने का प्रयास कर रही है या अननेसेसरी अमेंडमेंट्स लाने का प्रयास कर रही है, जिसकी वजह से संविधान की जो मूल स्पिरिट है, जो मूल भावना है, वो कहीं ना कहीं बाधित होगी। और संविधान की मूल भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना संवैधानिक नैतिकता से खिलवाड़ करने के समान है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती केस में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रोनाउंस किया, संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इससे पहले की भी लंबी कहानी है। चूंकि कम समय के लिए मैं आपके बीच मुखातिब होने आया हूं, इसलिए मैं पूरी बात विस्तार से नहीं बता रहा हूं। मैंने बताया ना कि 1950 में सबसे पहले, मुझे 10 मिनट ध्यान से सुनिए, शायद पूरी तस्वीर क्लियर हो जाए, थोड़ा स्पीड में बताऊंगा। 1950 में पहली बार, 50 नहीं 51 में, 1951 में, हाँ, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघवाद के हवाले से पार्लियामेंट को कहा कि साहब आपके पास दो तरह की शक्तियां हैं। पहली शक्ति विधि सृजन की शक्ति, लॉ मेकिंग अथॉरिटी, और दूसरी शक्ति अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की शक्ति। पार्लियामेंट खुश, ठीक है, हमारे पास दोनों तरह की शक्ति है। आगे चलकर यही परंपरा बनी रही। 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद के हवाले से, मतलब अंतिम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास दोनों तरह की शक्ति है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव, साधारण विधायी शक्ति और संवैधानिक विधायी शक्ति। लेकिन 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद के हवाले से कहा कि पार्लियामेंट के पास केवल एक ही तरह की शक्ति है, और वो है ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव शक्ति, यानी विधि सृजन की शक्ति। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब आपको नहीं लगता कि ये पार्लियामेंट के लिए बड़ा ही, मतलब अनफोर्सिन टाइप का था कि जैसे बम गिर गया हो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है जिसके आधार पर यह समझा जा सके कि भारत की संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। नहीं, आर्टिकल 368 ओनली टॉक्स अबाउट द प्रोसीड्यूरल डिवाइसेस टू बी फॉलोड इन ड्यू कोर्स ऑफ कैरिंग आउट अमेंडमेंट ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 368 केवल व केवल संविधान में संशोधन के प्रक्रियात्मक संदर्भ की बात करता है, प्रोसीजर की बात करता है, शक्ति की बात नहीं करता। पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने संविधान संशोधन की उसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए 1971 में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर दिया, और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के माध्यम से अनुच्छेद 368 की शीर्षक ही बदल दी गई, टाइटल ही बदल दिया गया, और सबसे ऊपर लिखा गया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर्स देयरऑफ। भारत की संसद का संविधान में संशोधन की शक्ति तथा तदर्थ प्रक्रियाएं हैं। अब देखिए माजरा, ये 71 का वाकया है। मैं आप ही के पॉइंट पे हूं, थोड़ा पीछे से ले चल रहा हूं चीजों को। अब आ जाइए 73 में। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के हवाले से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को वैधानिकता प्रदान कर दिया। चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि 24th अमेंडमेंट तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पार्लियामेंट के पास संविधान में संशोधन की शक्ति नहीं है, फिर भी इसने कर दिया 368 में संशोधन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, संविधान संशोधन में, मतलब जो भी इन्होंने संविधान में संशोधन किया है वो कहीं से भी गैर वैधानिक नहीं है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने 24th अमेंडमेंट को वैलिड करार दे दिया, लेकिन वहीं पर एक कंडीशन लगाया, कहा कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है सिवाय संविधान के मूल ढांचे के। अब सवाल ये उठता है कि लोग जानने का प्रयास किए कि ये मूल ढांचा कौन सी बला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत अधिक दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है,
अपना काम करिए, समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे कि मूल ढांचा क्या है। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, बस इतना आप कह सकते हैं, इतना हम कयास लगा सकते हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट की नजर में संविधान के मूल ढांचे से संबंधित वे प्रावधान होंगे जो संविधान के लिए मतलब आवश्यक रूप से दूरगामी महत्व के प्रावधान हैं, जो जिनकी अपनी एक तरह से एंड्योरिंग इंपॉर्टेंस हो, लॉन्ग लास्टिंग इंपॉर्टेंस है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में कंसीडर किया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता चाहिए। ये हम और आप कयास लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आमतौर पे संविधान के मूल ढांचे के अंदर उन प्रावधानों को जोड़ता है जो सुप्रीम कोर्ट की नजर में संविधान के लिए दूरगामी महत्व वाले प्रावधान है, दूरगामी महत्व वाले, है ना, मतलब बेहद महत्वपूर्ण प्रावधान। और कोर्ट ने रेफरेंस भी दिया, जैसे मान लीजिए रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट हो गया, है ना, और सेकुलरिज्म का, सोवरेंटी का, ये सारे कंसेप्ट, बैलेंस बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब के सब क्या हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के हिस्से हैं, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट की बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन की भी आलोचना की जाती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और बेसिक स्ट्रक्चर को बोला कि ये वो प्रावधान है जो बेहद महत्वपूर्ण है, जिनके अपने दूरगामी महत्व हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक तरफ बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता होगी, तो संविधान की सर्वोच्चता का मतलब कि संविधान के सभी प्रावधानों की सर्वोच्चता। एक तरफ बोल रहे हैं संविधान सर्वोच्च है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कुछ प्रावधान बेहद सर्वोच्च हैं और कुछ कम। तो अपने आप में ये थ्योरी सेल्फ कंट्राडिक्टरी है, ऐसा मैं नहीं, आलोचक कहते हैं, आलोचक कहते हैं। और आलोचक ये भी कहते हैं कि भाई आर्टिकल 368 चलो मान लिया कि संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति देता है, अगर उसे बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पर संसद की संशोधन की शक्ति को संकुचित करना होता, कट शॉर्ट करना होता, तो 368 में ही लिख दिया जाता। आपको अलग से बताने की क्या जरूरत है? तो जुडिशरी पे सवाल करते हैं। तो जुडिशरी कहती है कि माना कि 368 में कंडीशन नहीं लगाई गई है, लेकिन 368 आपसे यह भी अपेक्षा नहीं करता कि आप संविधान को बर्बाद कर दीजिए। संशोधन का मतलब यह थोड़ी होता है कि संविधान को उजाड़ दो। समझ रहे मेरी बात? तो ये अलग अलग पक्ष हैं, विस्तार से कभी चर्चा इस पे होगी, बट लबोलुआब यही है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी विधायिका के सदस्यों पे अधिक यकीन करते हैं कि न्यायपालिका के सदस्यों पर, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब कि हमारे पास एक बेहद जिम्मेदार न्यायपालिका है, तो अंततोगत्वा हमें किसका पक्ष लेना चाहिए? न्यायपालिका का। अगर न्यायपालिका ने ऐसा सिद्धांत दिया है तो जाहिर सी बात है सोच समझ के ही दिया होगा, और हमें अपने न्यायाधीशों पर, अपनी न्यायपालिका पर विश्वास रखते हुए उसका अनुसरण करना चाहिए। वो कभी भी संविधान के विरोध में कुछ नहीं करेगी। हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। आपको नहीं लगता कि 20-20 साल में अगर लोकसभा का चुनाव होने लगे तो ये टोटालिटेरियनिज्म की तरफ देश बढ़ जाएगा, रूल ऑफ लॉ चैलेंज हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए चुनौती पैदा हो जाएगी। पूरी बात सुन लीजिए। डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी का मतलब जानते हो क्या होता है? बताओ, कुछ भी जो दिमाग में आए, संकोच मत करिए, मेरी क्लास बड़ी लोकतांत्रिक होती है। लोकतंत्र क्या मतलब हुआ? मैं पूछ रहा हूं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, तो आप हिंदी मतलब बता रहे हैं मुझे। लोकतंत्र का मतलब क्या है तो बताओगे? डेमोक्रेसी जनता का, जनता का राज। हाँ, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यही डेमोक्रेसी है। चीन में डेमोक्रेसी है कि नहीं? क्यों? सालों से एक ही पार्टी है। हाँ हाँ, डेमोक्रेसी में फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन होते हैं। एक्चुअली आप जिसको डेमोक्रेसी बोल रहे हैं ना, आप बेसिकली लिबरल डेमोक्रेसी की वकालत कर रहे हैं। डेमोक्रेसी मुख्यतः दो तरह की होती है, लिबरल डेमोक्रेसी एंड मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी। आमतौर पे वो माना कि लिबरल डेमोक्रेसी डोमिनेंट है। लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब समझ रहे हैं? जो शासन प्रणाली लिबरल स्टेट्स में पाई जाती है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ लिबरल स्टेट? उदार राज्य। मतलब जिसमें स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, उसके लिए सब लोग इक्वल होते हैं।
आप लोग उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद के बारे में कुछ जानते हो? सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में कोई फर्क है? क्या फर्क है? दोनों अलग है। कौन बड़ा कौन छोटा? किसका दायरा व्यापक है? समाजवाद का कि साम्यवाद का? समाजवाद का दायरा व्यापक है। हाँ, क्या समाजवाद में लोकतंत्र की बात की गई है? किसे लोकतंत्र बोला गया है? देखो जी, सर्वहारा की तानाशाही को वहां लोकतंत्र बोला जाता है, समझ रहे हैं, सोशलिस्ट स्टेट में। और लिबरल स्टेट्स में जिस डेमोक्रेसी को हम अपनाते हैं उसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में अपनाते हैं, शासन के स्वरूप के रूप में, सरकार के रूप में। हमारी जो डेमोक्रेसी है सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट पे सबको साथ लेकर नहीं चल पाती, पॉलिटिकल फ्रंट पे ये सबको साथ लेकर चलती है, समझ रहे मेरी बात। लिबरल स्टेट्स में जो डेमोक्रेसी पाई जाती है वहां सबसे अधिक फोकस किया जाता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे, सरकार के स्वरूप पे। और जब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे आप फोकस करेंगे तो जाहिर सी बात है पीरियोडिक इलेक्शंस कराएंगे, नॉन पार्टीशन मैनर में इलेक्शन कराएंगे, तभी तो लोगों के पॉलिटिकल राइट्स को आप कंसोलिडेट कर पाएंगे। भाई सबको मत देने का अधिकार है, सबके मत का मान समान होगा, सभी चुनाव लड़ सकते हैं, सभी चुनाव लड़वा सकते हैं दूसरों को, यही सारे तो डेमोक्रेटिक राइट्स है। तो लिबरल डेमोक्रेसी में इन राइट्स को काफी तरजीह दिया जाता है। लेकिन जब सोशलिस्ट डेमोक्रेसी में आप जाएंगे तो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट यू वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ पॉलिटिकल राइट्स बट यू वुड बी प्रॉपरली प्रोवाइडेड विद सोशियो इकोनॉमिक राइट्स। आपको सामाजिक न्याय मिलेगा, आपको आर्थिक न्याय प्राप्त होगा, राजनीतिक न्याय संभव है, प्राप्त नहीं होगा। लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबसे ज्यादा फ्रीडम पे फोकस करती है, पॉलिटिकल राइट्स पे फोकस करती है। सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे लूप होल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप देख लीजिए हिंदुस्तान में सबको वोट देने का अधिकार है ना, सभी के मत का मान बराबर है ना, लेकिन क्या आर्थिक न्याय सबको प्राप्त है? तमाम तरह की आर्थिक भिन्नताएं दिखती है, सामाजिक भिन्नताएं दिखती है, लेकिन क्या राजनीतिक भिन्नता है? तो थ्योरेटिकली तो नहीं है। अब व्यवहार में चुनाव वही लड़ेगा, लेकिन सैद्धांतिक रूप से नहीं है ना ऐसा। और आर्थिक सामाजिक रूप से तो आप देखेंगे साफ साफ आपको नजर आ जाएगा गैप। ठीक है, तो फिर हम मुद्दे पर वापस आते हैं। तो 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया और कहा गया कि संसद संविधान में कोई भी संशोधन करे चलेगा, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं करेगी, और संविधान के मूल ढांचे से संबंधित वे प्रावधान होंगे जो जो दूरगामी महत्व के होंगे, और ये न्यायपालिका समय समय पर आपको बताती रहेगी। तो आपको नहीं लगता कि अब गेंद पूरी तरह से न्यायपालिका के पल्ले में आ गई? आप संशोधन करिए, वो बोल देगी कि भैया ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, संशोधन खारिज, क्या कर लेंगे? आप बनाने चले थे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, बोल दिया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी के अगेंस्ट जा रहा है ये, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हो गया खेल। तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया तो भी संसद का साहस देखिए, या जो कह लीजिए, संसद ने फिर 368 में संशोधन किया, अनुच्छेद 368 में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 1976 में, और 368 में दो क्लॉजेस जोड़ दिया, 368 क्लॉज 4 एंड 368 क्लॉज 5। क्लॉज 4 के माध्यम से कहा गया कि भारत की संसद संविधान में कोई भी बदलाव करेगी, कोई भी संशोधन करेगी, दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, उसे किसी भी अदालत के समक्ष चुनौती नहीं दिया जा सकता। और 368 क्लॉज 4 में बोला गया कि द पार्लियामेंट हैज अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संसद के पास संविधान में संशोधन की असीमित शक्ति है। द सुप्रीम कोर्ट फाउंड बोथ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट गोइंग अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो 1980 में मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को क्वाश कर दिया, और उसके बाद से तो फिर आप देखेंगे तमाम अलग अलग जजमेंट के माध्यम से इन पर नकेल कसना शुरू किया। वामन राव केस में कहा कि ऐसा है, ये जो तुम 9th शेड्यूल में लॉ को डाल देते हो ना, आर्टिकल 31 कैपिटल बी के हवाले से, और बोलते हो कि 9th शेड्यूल का लॉ अब पूरी तरह से इम्यून हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स के। नहीं नहीं, 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी लॉ 9th शेड्यूल में डाला गया है, ठीक है, उसे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्राप्त होगी, लेकिन
वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा तो उसकी इम्यूनिटी की हमें कोई चिंता नहीं है, हम उसे खारिज कर देंगे। समझ रहे मेरी बात? फिर एल चंद्रा कुमार केस में 97 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने नकेल कसी, लगातार ये जारी रहा। तो अब जाकर मामला अब साफ साफ दिख जाता है कि यस, अंडर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम द जुडिशियरी एंजॉयज wider jurisdiction, wider autonomy comparing to the remaining organs of the government, namely the legislative and the executive. तो ये पूरी कहानी है। बेहद संक्षेप में मैं आपको बताया हूं। रेगुलर क्लासेस में इसको काफी स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से पढ़ेंगे। जो चीजें शायद मैं 3-4 घंटे में आपको पढ़ाता, वो थोड़ी देर में बता दिया। मेरा मकसद था बेसिकली ये जानना कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, या मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। मतलब आपकी नजर में मेरी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, दोनों का आकलन हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, तो एक काम जरूर करेंगे जो मैं आपको असाइनमेंट के रूप में दे रहा हूं, भले ही ये रेगुलर क्लास नहीं है, एक तरह से सिंपोजियम है जहां हम लोग 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आए हैं। अगर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में कोई बात करनी हो तो आप बेझिझक मुझसे डिस्कस कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और पढ़ते पढ़ते थक गए हों तो आराम से आप जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार दोहरा दूं, 10 मार्च से हमारी नियमित क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ऑफलाइन क्लासेस, और आशा करेंगे कि आपसे मार्च में मुलाकात जरूर होगी। हो सकता है बीच बीच में भी हो इस तरह से, ठीक है। तो आप जनरल स्टडीज पेपर 2 का क्या, मैं तो कहूंगा पूरे यूपीएससी सीएससी मेंस का सिलेबस अपने पास हमेशा रखिए। मतलब सिलेबस तो कुछ इस तरीके से रखिए जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना कि पर्स हमेशा अपने पॉकेट में रखते हैं। पॉकेट में पर्स रहे या ना रहे, यूपीएससी का सिलेबस जरूर रहे, क्योंकि आपका जो पहला फेज है वो है हाउ टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग अपॉन द सिलेबस। तो सिलेबस पे पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, और सिलेबस के एक एक पक्ष को अगर आपने गंभीरता से फॉलो किया तो तय मानिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में जिसे आप कह सके कि यार ये तो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहा, अनएक्सपेक्टेड रहा, पता नहीं यूपीएससी ने कहां से पूछ दिया। नहीं, यूपीएससी हमेशा सिलेबस से ही पूछती है, और समस्या उनको आती है जो सिलेबस को फॉलो नहीं करते। इज इट ओके? हाँ, क्या? पार्लियामेंट इज बेसिकली द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट सेंट्रल लेजिस्लेचर का नाम है हमारे यहाँ। केंद्रीय विधायिका को भारत में भारत की संसद बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने देखा कि 1950 से लेकर 1980 तक पार्लियामेंट गवर्नमेंट रही, क्या सर ये कारण मान सकते हैं कि इसमें एक पार्टी का रूल था ज्यादा? नहीं, पार्टी नहीं, उसमें समस्या थी, आपको बताऊं। अब जरा सोचिए 50 ऑनवर्ड्स अगर कोई भी जज होगा, आपको लगता है कि मंत्रियों के अगेंस्ट जा सकेगा? क्योंकि मंत्रिमंडल में आमतौर पर अधिकांश वो लोग हैं जो स्वयं संविधान का निर्माण किए हैं, संविधान सभा वाले लोग हैं। हकीकत तो ये है कि शुरुआती दिनों में संसद डोमिनेंट हुआ करती थी। एक पार्टी का रूल ज्यादा था। नहीं, पार्टी वोटी की बात मत करिए। उन दिनों जो भी नेता थे, आपको नहीं लग रहा है कि किसी भी एक तरह से कह सकते हैं डिग्निटरीज की तुलना में, चाहे वो जुडिशियल पोस्ट पे हो या ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट पे हो, उसकी तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में थे। आप बताइए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित नेहरू, आपको लगता है कि इनकी बातों को काटने की किसी की क्षमता थी? चाहे आप ब्यूरोक्रेसी में रहे। आज के डेट में आज के आप शशि थरूर, वो किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने जाएंगे तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि कलेक्टर साहब कह के बोलेंगे, या आप उम्मीद करेंगे कि वो आकर रिस्पेक्ट करें? नहीं, रिस्पेक्ट आमतौर पे किससे आप उम्मीद करते हैं ज्यादा? तो थोड़े सड़क छाप टाइप के नेता हैं, क्योंकि वो अगर रिस्पेक्ट नहीं करें तो आप जल भूल जाएंगे। लेकिन एक बेहद पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसे आप अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, आपको लगता है कि हम इनसे कुछ सीख सकते हैं, उनसे आपका ईगो नहीं टकराएगा, क्योंकि वहां फिर आप स्टूडेंट वाले रोल में आ जाएंगे। ये चीजें होती हैं, ठीक है। ओके देन, थैंक यू। हाँ।